हाय विरान। वेलकम बैक टू चैनल जर्नी विद विवेक बंसल। यूट्यूब चैनल है, इस पे सारी की सारी गाइडेंस वीडियो पोस्ट होती है। और अभी ये सेशन है, इसमें टोटल 5 स्पीकर्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक्स टू देम, जिन्होंने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला और अपनी गाइडेंस देने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जितना उनका थैंक्स करूँ उतना ही कम है। और देयर नेम्स आर, फर्स्ट पे साई चरण, ही इज़ अ वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। और ये बहुत सारे सेशंस लेते रहते हैं। और और इनका मतलब आप लिंक्डइन वाला भी चेक करेंगे तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, जिनको आपको रीड करके काफ़ी मोटिवेशन फील होएगा। सेकंड स्पीकर है नंदिनी अग्रवाल, जो कि कुछ पर्सनल रीजन हो गया, शी कुडंट ज्वाइन, बट उन्होंने भी अपना टाइम दिया और एक्सेप्ट किया सेशन के लिए। थर्ड इज वंशिका, शी इज़ ऑल्सो वेल नोन स्पीकर। वो भी काफ़ी सेशंस लेते हैं और पहले वो ट्रांसफर प्राइजिंग में थे, तो उनके भी पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। फोर्थ इज राशि, थैंक्स राशि फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। एंड फिफ्थ इज साहिल गर्ग, ही इज एन मैनेजर इन बिग फोर आईडीटी प्रोफाइल, और वो अपनी सारे इंसाइट्स शेयर करेंगे। एंड सिक्स इज प्रतिभा। चलो लेट्स बिगिन वन बाय वन करके। फर्स्ट, हाय साई। Hi, Vivek. First of all, thank you for the invite and organizing this session. नाउ नो, glad to part of your network, so you accepted second time our invitation. It's my pleasure. Thank you. Yeah, let me introduce. He is a Sai Charan and he is qualified CA and CMA both, which is very rare. And he is the job from PSU and currently doing his executive MBA. Let's know our deep insights. Yeah. Thank you for the intro, Vivek. Hello, everyone. I'm Sai Charan. I have qualified my CA in 2022 May. It's been near 4 years, and I have qualified my CMA in December 2023 attempt. And I have secured AIR in CMA at all levels. I have secured AIR 1 in CMA Foundation, AIR 12 in CMA Inter, and AIR 32 in CMA Final. So it's been a good journey till date. And even in articleship, I've done my articleship from Guwahati and industrial training from Indian Oil Corporation Limited. It's a PSU, it's a Maharatna PSU. And then later, I cracked CA campus placements after qualifying CA. I worked in Standard Chartered Bank in Bangalore for 1 year. And then I wanted to come into PSU, so I gave PSU exams, and then now I'm presently working in one of the Maharatna PSUs, Power Grid Corporation of India Limited. It's an electricity transmission company of India. And along with that, I'm presently a student of IIM Calcutta. I'm pursuing executive program in global business management. It's a 1 year online and two-time campus visit course. So I'm presently doing that, and I also take major mentorship sessions. So thank you for the opportunity, Vivek, and organizing this Nikunj also. So that's about me. Oh, great. Sai, first question we received from the student, that how did you manage CA and CMA both? Means it is a typical for the student to manage a one course CA. It's me also, Yes. clearly. So initially, I've done CA, CPT, and CMA Foundation, and CA Inter and CMA Inter both together. So completely 2 years I was at home. I just kept everything aside. 2 years I was just completely into studies, and then once I cleared both of them, combining the syllabus, what I did was I just combined the similar subjects and similar chapters. So then there was only 20 to 30% of the syllabus was different. So I maintained my notebooks along with that. Like उस कॉम्बिनेशन में मैंने स्टडी किया था CA में. So after that, once I cracked CA Inter and CMA Inter, then I concentrated on CA only. Once I completed my entire CA, then I came back to CMA and I gave my CMA final, because once after cracking CA final, CMA final literally becomes like a cut copy paste exam hall, or near to 70 to 80%. So that made my journey easy, and but it was a long journey, very 5 to 6 years. But now it feels good. It feels effortless. ओके ओके, साउंड Yeah. ग्रेट। मीन्स अभी तो आपको इजी लग रहा है, बट जब किया होगा तो डेट इज अ डिफरेंट फेस। Yes, तो yes, yes, जैसे yes. आपने अभी मेंशन किया, यू हैव वर्कड इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो वो Yes. कैंपस से था या ऑफ कैंपस था आपका? It was a campus placement, CA campus तो placement. थोड़ा कैंपस का Yeah. आप शेयर करोगे एक्सपीरियंस। काफी सीए फ्रेशर्स पूछ रहे थे कि कैंपस में कैसे होता है, हाउ डिड यू मैनेज दैट। क्या आपने कहीं से, जैसे आजकल होता है Yes. ना कि पेड सेशंस होते हैं, कि आप इतना, Yes. तो आपका कैसे था उसके लिए?
यस, आपके काफ़ी सारे आजकल तो ऑनलाइन मेंटरशिप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आपको ट्रेन किया जाएगा, जीडीज एंड मॉक इंटरव्यूज एज वेल. You can go for them because what happened with me was I had interview experiences before, because I cracked that industrial training interviews. I gave 4 to 5 of the interviews so that I had my foundation straight. So मेरे को सीए पोस्ट क्वालिफिकेशन भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ था, बिकॉज आई हैड आइडिया लाइक व्हाट हाउ वुड द इंटरव्यूज बी. So my journey, it was straight. I just post qualifying, I just immediately started applying. Then after that, I gave lot of 8 to 9 interviews in off campus. Like before sitting in campus placement, off campus भी मैंने 3 to 4 offers I had in my hand, because उसके पहले ही मैंने क्रैक किया था. एंड आफ्टर दैट आई गेव माई सीए कैंपस प्लेसमेंट विच मेड द जर्नी वेरी इजी. तब तक मेरे को आदत हो गया था इंटरव्यूज का. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड, कीप गिविंग इंटरव्यूज. जहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, जस्ट गो एंड सिट, टेक दैट स्ट्रेस, टेक दैट, लाइक वो फियर आपका निकल जाएगा एक बार आप इंटरव्यूज देना शुरू करोगे. सो नेवर एवर डायरेक्टली गो एंड सिट इन कैंपस प्लेसमेंट्स. दैट विल increase your fear, वो interviews fear. So always take practice. and फिर आपके इंटरव्यूज तो अलग ही completely एरिया है. But coming to campus placements, you have to immediately register with the ICAI for the campus registration form. It will be open for 10 days. Then once you register, the form is very, very, very important. And I would always recommend just immediately register in the first 5 to 6 days. वरना लास्ट में फिर द साइट स्टार्ट्स क्रैशिंग और वो सब इश्यूज होता है. So whatever content you fill in the form while registering for campus, that is very important. The keywords and all the experiences you have in your articleship or industrial training. So please concentrate on those while filling. Take 1 to 2 days neatly. आप ड्राफ्ट में सेव कर लेना, फिर आप सबमिट कर देना. Then once you give it, it goes to the ICA, and then they give the data to the companies. They shortlist, and then you have the entire timeline ब्रोशर में, कैंपस का ब्रोशर में. सो अकॉर्डिंगली आपको लिस्ट ऑफ कंपनीज यू गेट दोस in your campus portal, in your login. Then you have 4 companies to select maximum. So आपके strategy के हिसाब से you can choose the 4 in your first round itself, or you can choose 2 or 3, and then keep the chances remaining for your second round of shortlisting. And then once you finalize your 4, then you can attend interviews. And I would always recommend कि keep your, not more than 2 companies should be on a day. वरना आपका इंटरव्यूज टाइमिंग्स आपका क्लैश हो जाएगा ऑन द डे ऑफ कैंपस. सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड ऑन डिफरेंट डेट्स आपके कंपनीज के इंटरव्यू शेड्यूल हो. दे विल इन्फॉर्म यू ऑल द रोल्स, पैकेजेस एंड एवरीथिंग. लाइक द उसमें इंटरव्यूज में भी डायरेक्ट इंटरव्यू, और यू हैव साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड देन द इंटरव्यू. सो ऑल ऑफ देम. सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोसेस एंड कीप गिविंग द मॉक्स इन ऑफलाइन, सो दैट आपको इंटरव्यू इजी लगेगा बाय द टाइम यू गो टू द सीए कैंपस प्लेसमेंट. या. ओके, ऑल राइट, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है. इसमें दो बेसिक डाउट निकल के आते हैं, एक सीए स्टूडेंट का और सीए फ्रेशर का. जैसे आपकी आपने पहले मेंशन किया था कि आपने आर्टिकलशिप अपनी गुवाहाटी से करी है, तो यस. आपका यस. एक्सपीरियंस कैसा था? मतलब बहुत जनों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी आर्टिकलशिप स्मॉल या मिड साइज से करूंगा तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मतलब बिग फोर में ही जाना चाहिए. आइडली ऐसा क्वेश्चन सबके माइंड में आता है. सेकंड, एक सीए फ्रेशर यस. है, उसके माइंड में आता है कि मैंने आर्टिकलशिप बिग फोर या स्मॉल साइज से करी है, तो अब मेरे को आगे करियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत दिक्कत आएगी. तो आपके इस पर क्या टेक है? मतलब पहला तो आर्टिकलशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सीए फ्रेशर. Okay, so see, there are actually two ways. अगर आपका बिग फोर से आर्टिकलशिप है, see, there are always ways to crack something. If you are going directly into big four, it's always good. आप जा सकते हो, your resume gets power. आपको आगे वेटेज भी मिलेगा. You will get specialization right from the starting beginning itself. That is also a good area. And एक और area है, and this area was suggested to me in my orientation right before joining my articleship. So वहां पे एक सर ने बताया था, he said 2 ways are there. It may be big four, or it may be the other way around. You go into a mid-size or good articleship firm, you take exposure of various areas, you analyze आपको कौन सा सूट करता है, and then you go to industrial training, you go into specialization. Then you will have at least idea of some of the areas before you get into specialization area. Because
डायरेक्टली आर्टिकलशिप में ही अगर आप स्पेशलाइजेशन में जाओगे, देन यू वोंट हैव प्रैक्टिकल आइडिया ऑफ मेनी एरियाज, बिकॉज बाद में आप एक्सपेरिमेंट कर नहीं पाओगे आपके, वंस यू ग्रो इनटू द पोस्ट क्वालिफिकेशन Yeah. रोल, आपका आप ग्रो नहीं, आप इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे. यू कैन ओनली एक्सपेरिमेंट विद द एरियाज राइट इन योर आर्टिकलशिप ओनली, दैट टू इन द बिगिनिंग फेज. So I like the second idea more. I went into a mid-sized firm, then I worked on various areas, audit, taxation, sare ROC forms, like it covered multiple areas, and I had chance because I was working in a very mid-sized firm. But then what is the most important thing is, जो भी आपको areas में train किया जा रहा है, you have to be theoretically also strong in it, so that you can prove your knowledge while you are sitting in the industrial training interviews. Because industrial training interviews में काफी grill किया जाता है. They just want the confidence that if they train you, you will learn properly. दैट्स इट. उनको उससे ज्यादा होप्स नहीं है आपके ऊपर. यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर एम्प्लॉय, यू विल बी जस्ट फॉर 1 year, यू विल गो आउट ऑफ द कंपनी एनीवेज. So they just want someone who can train, who can learn properly, who has the interest, curiosity to learn. So you have to show that yes, मैंने last 1 year of articleship में मैंने काफी सीखा है, and I can prove that I whatever has been taught to me, I can say you. So अगर आप वो प्रूव कर लोगे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यूज में, then that's it, your work is done. I just attended 3 interviews. I had all the 3 interviews in my hand, all the offers in my hand. And one more thing is, uh, आप आपको inferior feeling आ सकता है कभी कभी, that you are in mid size firm and your friends are in big four articleship, that वैसा type feelings भी आएगा, because I too had. But uh, keep confidence on yourself. Whatever you are learning, सबको अलग अलग टाइप ऑफ लर्निंग्स मिलते हैं अपने जर्नी में. जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑन दोज थिंग्स. पीपल जस्ट वांट यू कि यू जस्ट हैव द क्यूरियोसिटी एंड यू हैव द एंथुजियाज्म टू लर्न. उनको आप तंग नहीं करोगे, बस उससे ज्यादा उनको होप नहीं है. सो जस्ट हैव द क्यूरियोसिटी एंड देन यू कैन गो एट. ऐसा कोई मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको डेफिनेटली बिग फोर ही रखना है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एकेडमिक्स शुड ऑलवेज बी ऑन द फ्रंट. आपके अटेम्प्ट्स अटेम्प्ट्स तो दे आर, उसका क्लैरिटी आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन, आप जब ऑफ कैंपस में जाओगे या कैंपस में बैठोगे, तब आपको अटेम्प्ट्स का और ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगा. बिकॉज द जॉब अपॉर्चुनिटीज मैटर अ लॉट अटेम्प्ट्स के ऊपर. सो ऑलवेज कीप योर एकेडमिक्स ऑन द फ्रंट. आपके थोड़े ऊपर नीचे आपके वर्क एक्सपीरियंस में होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एकेडमिक्स आपके प्लीज ट्राई टू क्लियर इन योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट मैक्स. उससे ज्यादा आगे मत लेके जाना, अनलेस अदरवाइज अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आर इन प्लेस. प्लीज फोकस ऑन एकेडमिक्स एंड जल्दी से जल्दी स्टूडेंट से मेंबर बन जाना. आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा आगे. ऑलराइट, थैंक यू टिप्स के लिए, काफ़ी या अच्छी टिप्स हैं। अभी तक तो इतना ही है। और जैसे आपने या पीएसयू का, मैं एक लास्ट डिस्कस. क्वेश्चन, पीएसयू का मेंशन किया था यस. कि आपने बाद में ही पेपर्स देके पीएसयू क्रैक किया, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तो हाउ डिड यू यस. मैनेज दैट? मतलब आपने उसके लिए प्रिपरेशन सेल्फ करी थी या कोई कोर्सेज होते हैं, कैसे किया था उसका? Actually, you first thing is you have to track the notifications आपके PSU के. After my after my guidance, I will put the notifications group in the chat box. You can also join the Telegram group. उसमें आपके सारे PSU companies के notifications एक जगह पे आपको मिल जाएंगे. You have to check the notifications and then you have to apply accordingly on their individual portals. फिर in the circular itself, they will mention the syllabus very clearly. उनके क्या सेक्शंस होंगे, उनके फाइनेंस सेक्शंस होंगे या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन होगा, वॉट एवर इट इज. यू हैव दैट सिलेबस वेरी क्लियरली एंड विद द पेपर पैटर्न एज वेल. सो इफ यू डू सम सिंपल रिसर्च, आपको पास्ट पेपर्स भी मिल जाएंगे बाहर, आपको कुछ भी वेबसाइट्स में. सो वंस यू टेक दोस, देन रेस्ट ऑफ द थिंग इज यू हैव टू combine all the subjects from CA फाउंडेशन टू CA फाइनल. आपके सारे सब्जेक्ट्स कंबाइन आपको फाइनेंस में मिलेंगे PSUs के पेपर्स में. along with that you have मैथ्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. आपके थोड़े सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. लाइक इफ यू हैव टोटल 120 क्वेश्चंस, यू हैव 90 क्वेश्चंस फाइनेंस एंड देन 30 क्वेश्चंस यू विल हैव लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश एंड ऑल ऑफ देम. So you have lot of competitive exam books in Amazon itself. RS अग्रवाल सर के आपको काफी सारे बुक्स मिल जाएंगे PSU एग्जाम्स के. उसमें आप अगर इवन फॉर 20-25 डेज अगर आप डेली 1 to 2 hours अगर आप करोगे,
then you will have the base and you will be able to crack the mathematics section. बाकी finance, it's just a combined आपके सारे सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, राइट फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल, इवन फ्रॉम इकोनॉमिक्स आपके लेवल 1 से लेके फाइनल आपका एसएफएम हो, ऑडिट हो, डीटी, लॉ, एवरीथिंग दे विल बी आस्क्ड इन योर पीएसयू एग्जाम्स. सो दैट कैन बी सेल्फ. और अगर आपको नहीं है, आपको दिक्कत हो रहा है मैथ्स में ये सब चीज, यू विल हैव द मॉक एग्जाम पेपर्स एज वेल. आप थोड़े रिसर्च करेंगे आपको मिल जाएगा. यू कैन टेक देम एंड देन यू कैन डू प्रैक्टिस एट योर होम इटसेल्फ. आप बाय द टाइम यू गिव द पीएसयू एग्जाम्स, यू विल बी अ सीए बाय योरसेल्फ और सीएमए. सो तब तक ही आपको आइडिया काफी लग जाएगा. इतना आई डोंट थिंक कुछ कोर्सेस या फिर दैट विल बी वेरी हैवी. दैट दोज विल बी फॉर बाहर जो भी डिग्री बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिख रहे हैं उनको काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगा. बट आई डोंट थिंक सीए सीएमएस को इतना कोर्सेज का जरूरत है. दे विल बी एबल टू इजीली क्रैक इफ दे सिट फॉर वन मंथ टू 1.5 month मैक्स. ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच. और जो आपने टेली नोटिफिकेशन में बोला है, वो गाइस Yes, yes. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा मैं से लेके. Yes, yes. I will do it right now. ओके, थैंक्स साई फॉर योर Thank टाइम. you. एंड सच में एवरी सेकंड इज वर्थफुल. मतलब कुछ भी Thank you. ऐसा Thank नहीं you. हो जिसमें हर पार्ट लर्निंग वाला है. Thank you, Viraj. Thank you. ओके गाइस, नेक्स्ट स्पीकर इज अवर वंशिका. शी इज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट एंड currently in EY. How are you? I'm all good. How about you? I'm also good. First of all, thanks for taking out your time for this session and mentoring the students. Yes. Uh, let me let me introduce. She's a Manishika, and her LinkedIn you can see that she regularly posts about daily life updates, and her post is very inspiring. Means doing a job and maintaining her life is incredible. You can keep updated. So before we move on, I'll give Yeah. my introduction because there's a recent change in my job, which is not everyone is aware. So hi everyone, once again, I'm Vanshika Giriya. I'm a qualified CA and a CFA level 2 candidate. Currently, I'm with VX Ventures in startup investment space. Before this, as Vivek said, I was with EY in financial due diligence domain, and I was an EY Article 2 in transfer pricing. Outside of work, again, as Vivek said, I create content on LinkedIn and have around 22K plus following. And I'm also a active social worker. So excited to be here and looking forward to the conversation. Yeah. सो वैष्णव, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्वेश्चन आए स्टूडेंट के पार्ट से, जैसे आपने अभी बोला कि आपकी आर्टिकलशिप ट्रांसफर प्राइसिंग में थी, तो ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसिडर बहुत जनों को आता है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग दैट प्रोफाइल? So, like when I joined transfer pricing, transfer pricing is not a very common field. So initially, the rationale for joining was it's something exciting, something unusual, hence I should join. And I was very clear that I don't want to do audit. Once I got into it, I realized over a span of 3 years that this is not something that I can do forever. But those 3 years were very enriching because the transfer pricing is not something which is written hard coded in income tax law. Like we don't follow income tax word to word. It's a very judgmental based profile. Things can vary from client to client and financial year to financial year. So all in all, the experience was very rich, and the skills that I've learned from there are something that I can use in other aspects of my life too. So that's why I like the field. But since it also has a regulatory element to it, every year on 31st October we have to do some regulatory filing. Uh, I realized soon that I don't want to be in a field which would have such regulatory timings, and hence I chose to move ahead from that field after qualification. आई एम सेइंग दैट कि मैनी पीपल यूज्ड टू आस्क दैट कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग से आप जैसे एफडीडी में गए, मैनी पीपल फेस डिफिकल्टीज इन स्विचिंग प्रोफाइल. तो आपकी उसमें क्या स्ट्रेटजी थी? मतलब हाउ डिड यू कॉप अप विद द इंटरव्यूज एंड ऑल? So first of all, mine was an internal transfer Big Four EY transferring to EY Big Four. That was my biggest advantage. Second thing, I had built my profile and network in a way that my profile showed that I am an all rounder, and my network had some good people who connected me with the right people in that team. And during my interview, they were very clear that I don't know audit. So they asked me generic questions, case study based questions, which
essentially don't require a knowledge of any specific domain, but they test your IQ and how well versed you are with things going on in the world. So since I used to read a lot of newsletters, listen to a lot of good podcasts, from there I could collate things and give my answers. So yes, I did fumbled in a few of the questions, but what helped me stand out was my overall knowledge of what's going on in the economy, and hence I could sail through. ओके, गुड टू हियर दैट। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई बिग फोर में जाने के बाद तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाती है, एंड हेयर इज़ यू एग्जांपल कि डेली क्रिएटिंग अ कंटेंट एंड दैट इज़ टू पॉजिटिव कंटेंट। तो हाउ डिड यू मैनेज योर शेड्यूल? So honestly, I'm not very consistent on LinkedIn. There are times when I don't post, and there are times when any random post goes viral. But I have no shame in accepting that I use ChatGPT. I write my draft and give it to ChatGPT in order to get it refined faster, which saves me time. B, I don't put in a lot of thought process. जब हम ज्यादा सोचते हैं कैसा पोस्ट होगा, अच्छा जाएगा नहीं जाएगा, लोग क्रिंज तो नहीं सोचेंगे, we just end up making the problem bigger in our mind. So simplify, like don't overthink in your mind and just write what you feel like, because when you write from your heart, uh, you are bound to write better and faster. Second thing, as I said, I listen to a lot of content. So when you consume good content, you also process that in your mind, and when you start writing, good content will come automatically and within a less period of time. So that's how I used to manage. ओके, वेरी गुड इनसाइट्स। लास्टली क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कोई सीए फ्रेशर है, तो व्हाट टिप्स यू वुड लाइक टू गिव? जैसे एक सीए फ्रेशर है, जैसे बहुत क्वेश्चंस आए हैं कि स्मॉल या मिड से ज़्यादा आता है कि जब एक तो पहली बात उन्हें बिग फोर में आने में बहुत चैलेंजेस लगते हैं, एंड स्पेशली वो डिफरेंट प्रोफाइल्स, मतलब डीटी वगैरह में एंट्री लेना इज कंपेरेटिवली इजी, टैक्सेशन हो गया या आपका ऑडिट हो गया, बट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस या कोई भी अदर प्रोफाइल में जाना है, ट्रांसफर प्राइसिंग में जाना है, तो ऐसा कुछ ऐसा क्या करें मतलब जिनसे उनकी प्रोफाइल थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए? So it's not about FDD or transfer pricing. Before में कोई भी profile हो, it's not very easy to get into because thousands and thousands of people apply. So first is start with the basics, apply through the company portals. The probability of getting in or getting shortlisted is low, but it is one of the safest routes. Apart from that, cold mailing and reaching out to people on LinkedIn is something that is very, very important. Because and not only at partner level, even sometimes junior level employee can help you get in. Like how I got my articleship was, I messaged a random girl on LinkedIn. She referred my CV on the portal, and my CV was at that time, I was just fresh out of college and I had done a lot of internships. So hence my CV got shortlisted. So it's your luck. And big fours, along with your capability, it's also about your luck. Apart from that, like if you're targeting a particular domain, like FDD you said, so make sure that you're connected with a lot of people in that field, the partners, analysts, associates, everyone from there, because uh, out of 10 people you message, five will reply, and only maybe two or three will help you forward your CV. So it's a patience game, but you have to, because it's ultimately it's your life decision. राइट, तो काफ़ी अच्छा था। अ, तो आपके जैसे कि क्वेश्चन एंड आंसर बेसिकली यही आए थे कि ट्रांसफर प्राइसिंग के रिगार्डिंग और एफडीटी के रिगार्डिंग, और आपने अपना कंटेंट का भी बताया कि क्योंकि ना काफ़ी जनों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहा हूँ तो माइट भी नेगेटिव इम्पैक्ट, मतलब डालने से पहले उन्होंने सब लिख लिया बट सोचते रहते हैं कि क्या होएगा क्या होएगा। तो उसके बारे में अपना काफ़ी अच्छा टिप्स शेयर किया। आई होप इट विल हेल्प अ लॉट पीपल। ओके, थैंक्स। Thank you so much. ओके, सो गाइज, आवर नेक्स्ट स्पीकर इज राशि। Yeah, hi Vivek, hi everyone. हाय So राशि। I'll just introduce myself. So my name is Rashi Bahuja, and I cleared CA in 2018, and since then I'm working with ITC Limited. I have been working here in different roles. I have done internal audit, I have done supply chain finance, and currently I'm in sales commercial role. And so this is my journey overall. So if there are any questions related to industry, then I'll be happy to answer. Thanks, Rashi, for your introduction. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कपल ऑफ क्वेश्चंस कि जैसे आपने बोला कि आपने आईटीसी से स्टार्ट किया, देन हाउ यू गेट इनटू आईटीसी, मींस कैंपस ऑफ कैंपस, और हाउ डिड यू चूज प्रोफाइल?
Okay, so I got in through ICI campus. I selected Bangalore campus, and one of the companies that I was shortlisted for was ITC. And वहाँ पे मतलब that was the only company I gave interview for, and I got selected there. Profile, so we don't have a choice, that which profile has to be selected. So they only put me in internal audit role. So, and then since then, depending on need and the promotion cycle, I kept getting transfers. ओके ऑल राइट, तो आपकी आर्टिकलशिप कहाँ से थी? So my articleship was from a mid-size firm in Indore. But I had done areas other than audit also. Like I had done taxation, I had done a lot of work in debt, its syndication or equity raising, and I think that was the reason I got very good companies shortlisted, even though I was not from a big four. And I think that was one of the reasons that I was able to get into ITC. ओके, So yeah. तो काफी जनों का ना मेनली यही आता है कि भाई हम नॉन बिग फोर हैं तो कंपनी शॉर्टलिस्ट नहीं Hmm. होगी, तो आपका एक्सपीरियंस देख के अभी लोगों का देख के तो साई का भी देख के तो अभी बूस्टअप होंगे कि मतलब बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है मतलब बिग फोर ना होके। करेक्ट। तो आई थिंक जब वो फॉर्म जो साई वाज आल्सो स्पीकिंग, जो फॉर्म भरना होता है उसमें बहुत रेलेवेंट है कि आप क्या भर रहे हो, है ना? एक्सपीरियंस में क्या क्या है और कीवर्ड्स लिखने होते हैं वहाँ। तो आई थिंक जितने कीवर्ड्स लोग लिखेंगे उतने चांसेस बढ़ जाते हैं शॉर्टलिस्टिंग के। एंड ऑब्वियसली आपके अटेम्प्ट अगर एक है या AIR है, इवन दो यू आर फ्रॉम बिग नॉट फ्रॉम बिग फोर, आई थिंक दैट इज ऑल्सो एडवांटेज। और आई थिंक BCom 10 12 इन सबके मार्क्स कंसिडर करके, तो a lot of people from mid size also get good companies shortlist them. So then it depends on your interview. ओके, तो आप तो जैसे वैसे भी आईटीसी में हो, टॉप लिस्टेड कंपनी में आती है, तो उन्होंने तो इंटरव्यू में ग्रेड भी काफी किया होगा, काफी क्वेश्चंस बहुत। करे थे, तो हाउ वाज योर Yes. एक्सपीरियंस इफ यू कैन शेयर सम Yeah, क्वेश्चंस sure. और। तो आईटीसी से पहले मैंने ऑफ कैंपस एक क्लास करी थी फॉर 20-25 days टू प्रिपेयर ऑन इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशंस एंड ऑल दैट, एंड दैट रियली हेल्प मी। 40-45 मिनट्स का इंटरव्यू था हमारा, एंड उससे पहले ग्रुप डिस्कशन था। तो अगेन इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग थी ऑन द वर्क दैट आई हैड डन। सो जो, जैसे आई टोल्ड, आई हैड डन वर्क इन डेट एंड इक्विटी विच इज like quite unlike what most people do. So they did not ask me any question related to audit or DT. They were only asking me what I have done, और बहुत in detail, और बहुत ग्रिलिंग करते कि ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो क्या, इसको आप तो गलत बोल रहे हो, ये ऐसा होना चाहिए। तो उस टाइम इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू आर क्लियर अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स and you are able to understand what they are telling and apply your mind and answer. एंड लाइक वंशिका ऑल्सो टोल्ड, जनरल नॉलेज का हमारे में भी काफ़ी पूछा गया था। तो उसमें भी इफ़ यू नो, यू रीड न्यूज़पेपर, यू वॉच न्यूज़, तो इट हेल्प्स आई थिंक। तो वो दो चीज़ें थी आई थिंक दैट दैट वाज देयर इन द इंटरव्यू। ओके ऑल राइट, मतलब सीवी में भी काफी अच्छा है कि मतलब देख के ही डालना चाहिए, मतलब कुछ जनों के सीवी होते हैं वो बहुत चीजें लिख देते हैं कि मैंने ये किया वो किया। करेक्ट। हाँ। जैसे अभी। और आई थिंक वो बहुत, अभी किसी ने क्वेश्चन भी डाला, इफ यू कैन राइट फेक एक्सपीरियंस, आई थिंक यू शुड नॉट राइट दैट। ठीक है, फिर इंटरव्यू में बेइज्जती होगी। ओके ऑल राइट, क्योंकि अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक उन्होंने दोस्त से अपने दोस्त से सीवी मैच करने के चक्कर में बना तो लिया सीवी सेम, बट हम्म। जब हम्म। इंटरव्यूज में जाने लगी तो शी फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज, करेक्ट। तो वो काफी अच्छा था। तो हो सकता है कोई कंपनी जिसको ऑडिट चाहिए वो आपको नहीं लेगा, बट देयर विल बी मेनी कंपनीज जिनको शायद ऑडिट नहीं चाहिए होगा, दे विल टेक यू। तो यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग फेक। ओके ऑल राइट, तो आपका मतलब कुछ टिप्स कि जैसे कोई फ्रेशर है या इंटर्न है, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर आर्टिकल इंटर्न, कि जैसे एक फ्रेशर हम्म। इंटर्न, तो आपको तब बहुत एक्सपीरियंस हो गया, तो व्हाट यू विल सजेस्ट, मतलब एक तो पहला क्वेश्चन, अगर कोई इंटर क्लियर करके आया है तो सबसे पहला क्वेश्चन उसके माइंड में एक आएगा कि मिक्स एक्सपोजर और स्पेसिफिक एक्सपोजर डोमेन, तो हम्म। व्हाट यू लाइक टू एडवाइस, मीन्स लाइक योर सो सिबलिंग्स। या, so my advice would be that at least get into a mid-size firm and वहाँ पे do 1 or 2 different types of role, but थोड़ा detail में। And if you get an opportunity to do industrial training or do internship from a big four, I think that is great. You, it will help you definitely.
So if people who have done articleship in small size or mid size, then you are able to find internships. So online again, like Vanshika told, LinkedIn pay you can reach out to people, and there will be people who will help you in getting industrial training also. You can follow people on LinkedIn. Many people post also that looking for CA articles and all. So that is one way, and another company websites also have these vacancies so that you can keep checking. And big four may again, like Vanshika told, you can reach out to people or company. So that is an added advantage. But even if you are doing from mid size, do it in different roles and try to do it in detail and thoroughly, and don't go for a very small firm or a dummy article chip at all if you are looking for job. Okay, all right. Thanks for sharing these tips. And as you mentioned that he after CA freshers, he is confused regarding जैसे many people ask me कि किस डोमेन में जाना चाहिए, किस में ज्यादा पैसा Hmm. है. मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी पीपल ऑल्सो आस्क कि भाई टैक्स में ज्यादा पैसा है, ऑडिट में ज्यादा पैसा है, किस में Hmm. जाना चाहिए. Hmm. आपको इस पे क्या इंटेक है? सो बिग फोर का आई एम नॉट वेरी श्योर कि किस प्रोफाइल में क्या पे होता है. इंडस्ट्री का आई कैन टेल कि इंडस्ट्री में देयर इज नो डिफरेंट प्रोफाइल. ठीक है, इफ यू गेट इन टू सम एफएमसीजी कंपनी और सम कंपनी, उसमें दे विल कीप स्विचिंग ऑन रोल बट योर पे विल रिमेन सेम स्टार्टिंग में, एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. तो स्टार्टिंग में ऐसा कोई इंडस्ट्री में एटलीस्ट नहीं रहता. एंड आई वुड सजेस्ट पीपल शुड नॉट बी वेरी क्लोज्ड अबाउट इट कि मुझे तो जीएसटी ही करना है, तो किसी कंपनी में ऑडिट है तो आई विल नॉट डू, बिकॉज अल्टीमेटली कंपनी में सब होता है, यू कैन स्विच द प्रोफाइल. So I think we should not be very closed about it. Okay, all right. Thank you for sharing your tips. Now we will move to our next speaker, Sahil Garg. Hi, Sahil. Hi Vivek. Hi everyone. Hope Uh, I'm audible. yes, you are clearly audible. Yeah, First, firstly, let you introduce yourself. sure. So thank you everyone for joining this session. It's really glad to connect with all to discuss the different point of view and the different queries from the CA students or from the CA fresher regarding their career. So I'll introduce myself. My name is Sahil Garg. I am a chartered accountant. I qualified accountancy course in November 18 attempt. Uh, Before I done my articleship from a mediocre firm in Delhi Pitampura. And after qualifying CA, I joined EY in indirect tax profile. And recently, a couple of years back, I changed the job. I moved to KPMG in same indirect tax and incentive profile. ओह गुड टू हियर. तो साहिल, जैसे अभी आपने मेंशन किया प्रीतम प्लस से आपने आर्टिकलशिप करी थी, इट्स एक ही डोमेन थी, मतलब एक एक्सपर्टीज या मिक्स प्रोफाइल? नहीं सो इट्स ए मिक्स प्रोफाइल विवेक. तो लार्जली मेरा उसमें था, इनकम टैक्स में था, बट आई यूज टू डू सम वर्क फॉर जीएसटी, सर्विस टैक्स, वैट एटसेट्रा एज वेल. ऑल्सो आई डन some sort of work for ROC filing etc. ओके ROC filing etc. So it's a mix profile. ओके ऑल राइट. तो जैसे अभी आपकी जर्नी सुन के तो ऐसा लग रहा है टैक्सेशन प्रोफाइल में ज़्यादा मूवर्स रही है. तो Yes. मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टू आंसर की क्वेश्चन डैट की जैसे काफ़ी इंटर्न्स पूछते हैं कि आई वुड लाइक भाई, उनका ना क्वेश्चन होता है मुझे टैक्स में जाना चाहिए, ऑडिट में जाना चाहिए, मिक्स में जाना चाहिए. व्हाट इज योर इनटेक ओवर डैट? So basically, from my perspective, I think it will depend on person to person. उसका एंड गोल क्या है कि लेट से अगर किसी को आगे अपनी प्रैक्टिस ही स्टार्ट करनी है, सो आई वुड सजेस्ट कि ही शुड गो फॉर मीडियोकर फॉर्म ओनली. ओके, बिकॉज उसमें सब चीज़ों का एक्सपोजर उसको मिलेगा. Okay, but let's say in case someone wants to go into Big Four, into industry, then I would suggest to go for Big Four, or to do industrial training, or at least try for top 10 or top 20 firms. Because वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन होता है. Also I would suggest one thing कि आप कहीं पे भी हो, let's say you want to do job subsequently, correct, but सी आर्टिकल सी में आपको केवल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली टू वर्क इन बिग फोर और इन टॉप 10-20 firm. Give your best, prepare yourself कि for that particular domain आप पहले ही आप सोच लो कि let's say you want to do taxation, you want to go for audit. आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर करो, एंड इट्स नॉट द फैक्ट कि आप उसके ही लिए प्रिपेयर करो. यू विल
आपको बाकी सारी चीज़ों के लिए भी आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करो, बट फोकस आप एक ही एरिया पे करो जिसको आपको टारगेट करना है आफ्टर बिकमिंग योर सीए। ओके, ऑलराइट, अच्छा लगा। तो जैसे ना काफी जनों का आपकी एक ही डोमेन है और यू आर आल्सो फ्रॉम अ बिग फोर, तो मैनी पीपल यूज टू आस्क फर्स्ट इज दैट कि इफ दे वांट टू स्विच प्रोफाइल, लेट्स सपोज इफ अ पर्सन फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोफाइल फ्रॉम अ बिग फोर लाइक इंटरनल ऑडिट और समथिंग, नाउ दे वांट टू स्विच फ्रॉम दैट प्रोफाइल टू आईडीटी और समथिंग प्रोफाइल, तो आपके उस पर क्या टिप्स देंगे? मतलब अगर स्विच करता है तो उसके क्या क्वेश्चंस, क्या अपने फ्यूचर को माइंड में रखना चाहिए, और हाउ वुड ही लाइक टू प्रिपेयर फॉर एन इंटरव्यू? So Vivek, you are saying कि articleship internal audit में and यस, after CA he wants to go for IDT. यस, काफी जने So होते हैं I जिनको स्विच करना होता है। Yeah, I agree. And in fact, if you see my case also, I done articleship more or less in income tax, but I landed up in IDT after becoming CA. ओके, So I don't think so. It's a big issue. आपको just as I mentioned कि let's say अगर आपको internal audit में you are doing internship, आपको लगा कि नहीं इसमें आपका मन नहीं करता and you want to change to IDT or let's say be it any profile, देन यू नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट प्रोफाइल। आपको उन लोगों के कनेक्ट्स में रहना पड़ेगा। यू नीड टू सी कि आईडीटी में क्या अपडेट्स है, इनकम टैक्स में क्या अपडेट है, बीट एनी प्रोफाइल। आपको जिस प्रोफाइल को टारगेट करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस प्रोफाइल में आज के डेट में चल क्या रहा है एंड व्हाट्स द इंटरव्यू इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। सो आई डोंट थिंक सो इट्स ए मेजर प्रॉब्लम फॉर द कंपनीज ऑल्सो। So basically, as a CA fresher, what I feel, इंटरव्यूअर जो एक्सपेक्ट करता है वो एक्सपेक्ट करता है कि वेदर यू आर विलिंग टू लर्न, वेदर यू कैन अप्लाई योर माइंड, वेदर यू आर डेडिकेटेड टू नोट। और लेट्स से अगर आपने आर्टिकल सी में इवन दो यू आर डन इंटरनल ऑडिट, आपने वो समझ के किया है या आपने बस टाइम पास किया है, वो ब्रॉडली वो 5-6 चीज़ें यही देखता है। दे विल नॉट गो दैट मच इन टू डिटेल कि नहीं कि मेरे को आईडीटी एक्सपर्ट ही लेना है। एज ए सीए फ्रेशर हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि पीपल इज विलिंग टू लर्न एंड ही इज एबल टू डिवोट टाइम। ओके, ऑलराइट, तो ये काफी अच्छा था। मतलब बहुत जनों को पहला डाउट यही आता है कि मेरी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होएगी कि नहीं होएगी, तो आपने उसका एक बेसिक बता दिया कि बेसिक्स। Generally we used to took interview for mixed profile, even though for mediocre firm, even though for changing profile as well. ओके, ऑलराइट, तो और ऊपर से आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब हाउ इज योर लाइफ जर्नी? मतलब एक बिग फोर में आने के बाद मिक्स साइज में जैसे आपने इनकम टैक्स किया, अब बिग फोर में जैसे सुनने में आ रहा है कि काफी केसेस में ना एक दो जनों ने बोला था कि भाई अब ना लिटिगेशन का अलग डिपार्टमेंट बन रहा है, एडवाइजरी का अलग बन रहा है। इज इट ट्रू? और अब जैसे टैक्सेशन में भी मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में काम करने को मिलेगा, या आपका कैसे है कि मतलब ट्रेनिंग आप एक ही मतलब मल्टीपल एक्सपोजर लेना चाहिए, कम से कम एक डोमेन है तो उसमें तो हमें सब काम आना चाहिए। Yes, Vivek. So you are absolutely correct. So आजकल क्या हो रहा है कि बिग फोर में इवन दो फॉर इनकम टैक्स, इवन दो फॉर आईडीटी, देर इज ए स्पेशलाइज टीम। लेट्स से कंप्लाइंसेस के लिए एक अलग टीम है, एक एडवाइजरी के लिए अलग टीम है, लिटिगेशन के लिए अलग टीम है, एंड इनफैक्ट आई एम पार्ट ऑफ द इंसेंटिव टीम। एक आईडीटी में एक इंसेंटिव की टीम है, आई एम प्राइमली वर्किंग ऑन दैट टीम, इन दैट टीम होती है। सो आजकल ये चल रहा है, बट आई एम लकी इनफ कि मैंने उस पीरियड से पहले ज्वाइन किया था and I got chance to work in all these domain, be it compliance, advisory, litigation, etc. But having said so, ऐसा नहीं है कि आप स्पेसिफिक टीम में जा सकते हो। सो बेसिकली क्या होता है कि एक कोर टीम होती है। सो लेट्स से इफ यू आर हैंडलिंग ए क्लाइंट, क्लाइंट के पास तो सारी चीज़ें आएगी, उसका कंप्लाइंस भी होगा, उसका आपके पास लिटिगेशन भी होगा, उसका एडवाइजरी भी होगा। एंड जनरली क्लाइंट डोंट प्रेफर कि वो एक ही बिग फोर में, लेट्स से अगर वो केपीएमजी में काम करवा रहा है, ही नीड टू कोऑर्डिनेट विद 4-5 पीपल्स। तो वो क्या होता है, जैसे एक कोर टीम होती है, कोर टीम का काम होता है दे विल कनेक्ट विद क्लाइंट, एंड एक बैकएंड पे टीम होती है जो आपकी स्पेशलाइजेशन वाली टीम होती है। सो लार्जली क्या होता है कि वो बैकएंड पे एज ए सपोर्ट फंक्शन काम करती है। सो स्टिल देयर इज स्कोप कि यू कैन बी पार्ट ऑफ कोर टीम, जिसका जो कोर एक्सपर्टीज होगी कुड बी ऑल 3-4 एरियाज। ओके, ऑलराइट, तो अभी तो जैसे प्राइमरी क्वेश्चन तो याद है, अभी प्रोफाइल में जाना कैसे है? अब प्रोफाइल के अंदर ही प्रोफाइल्स बन गई हैं, तो इट विल बी डिफिकल्ट टास्क, भाई सिलेक्ट कैसे करें नहीं, कुछ? तो अभी अभी तो आई सजेस्ट वन थिंग, एज ए सीए फ्रेशर और एज ए सीए स्टूडेंट, आप पूरी प्रोफाइल को, आप पूरे आईडीटी को एक्सप्लोर करो। डोंट फोकस ऑन एनी स्पेसिफिक प्रोफाइल
लाइक आप लिटिगेशन ही करोगे, एडवाइजरी करोगे, कंप्लाइंस ही करोगे, एंड इनफैक्ट ये सारी चीज़ें भी आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे अगर मान लो आपको किसी क्लाइंट को एडवाइजरी करनी है, मे बी उसमें आपका लिटिगेशन वाला एक्सपोजर भी आएगा, आपको केस लॉ वगैरह भी सर्च करने पड़ेंगे, मे बी कंप्लाइंसिस वाला पार्ट भी होगा, क्योंकि 2A 2B अगर लेट्स से मैं जीएसटी की बात करूं कि आपको कंप्लाइंसिस का ही पता होना चाहिए। सो यू शुड इवन इवन दो यू आर इन टू ए स्पेसिफिक डोमेन, आपको पता आपको सारा ही होना चाहिए। ओके ओके, ऑलराइट। यस। ओके, थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। गाइस, Q&A सेशन हम एक बार लास्ट स्पीकर हो जाए तो उनके बाद लेंगे Q&A सेशन, जिसमें आपके भी जितने डाउट्स आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, यू विल हैव अ अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट एंड डायरेक्टली आस्क फ्रॉम देम। हाय प्रतिभा, कैसे हो? Yes. प्रतिभा, Hi, Vivek. हाय, हाउ आर यू? Is सॉरी, my yeah. यस, सॉरी टू आस्क अ फेवर, कैन वी कीप, बस एक गर्ल है, उनका एक क्वेश्चन है, उनकी हेल्थ थोड़ी सी सही नहीं है, तो एक बार उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। Sure, not a problem. Okay, sorry for inconvenience. Hi, Pradisha. Hello, sir. I actually had a question for Rashi, which I missed that time. Yes, yes. So, as a management student or as an undergraduate student, how can we apply for internships, especially in companies like ITC? So again, you can reach out to people on LinkedIn, and if you are looking for unpaid internships, I think that is very easy to get, so that you can easily get and gain some exposure, and then maybe apply for that. Will help you in further application for maybe your paid internships or job. Also, ma'am, what are the specifications companies like ITC look in a management undergraduate or graduate? So see, internship mein, like Sai also mentioned, that they just want to know that whether you're capable of learning and doing the work. They don't have a lot of expectation in terms of you should be you should have a lot of exposure in any particular field. It's an added advantage, but whatever you have studied or whatever course you are doing, if you have good understanding theoretically about that, and with that you are able to have good communication, you are able to articulate properly, I think that's good to go. I think internship may they will not look for much more than that. Okay, got it. Thank you so much. Most well. So, thank you, Rashi. Hi, Yes. yeah, Hi, sorry, Vivek. sorry for this. No problem. No problem. Guys, she is Pratibha and she has expertise in FP&A and worked in a Big Four, even though she worked in a HSBC as an industrial trainee. Pratibha, please give some brief insight. Yes. Firstly, I would like to thank Nikunj for giving me this opportunity, and I would like to thank you as well. It's good to see so many people over here. And yes, I would like to introduce myself. I'm CA Pratibha Sharma, and I recently qualified in 2025 only, July 2025. And I would not, I would introduce myself as a multiple attempt holder, right? And I did my articleship from mediocre firm, and thereafter I did my industrial training from HSBC EDPI, and post completion to my industrial training, I worked as an analyst in PwC, right, in IDT department. And it took me almost 5 to 6 years, I can say, to clear due to some personal challenges, I can say. So, but yes, right now I'm into finance domain. That is Anaplan. Right now working with Polestar Analytics and currently handling Panasonic project. Yes, Okay. that's all about me. Means your journey is very inspiring. First of all, you have clearly mentioned multiple attempts. It is, but at the end, Yes. clearing exam is matter, and you did it. Actually, yes, I wanted to break the myth multiple attempt holder cannot get into finance domain. Okay, within 1 month of the results, I got this opportunity. I mean, this finance domain. So wanted to break this saying only first attempt holder can get into finance domain, or like rank holders can get into the same.
despite having the same, I was actually able to get it. So that's the main thing. Okay, all right. So let's move forward with your experience. First, kindly describe your कि आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कि हाउ वाज HSBC, उसमें क्या प्रोफाइल था एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपोजर डिड यू गेट? I was into product control domain. I gave interview for Microsoft too, and I got selected. But मैं एक कुछ यहाँ पे जो अभी एक्चुअली लास्ट ईयर में है आर्टिकलशिप में, उनको मैं कुछ यहाँ पे गाइडेंस ये देना चाहूँगी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए. See, when I gave my interview, I did my articleship from mediocre, right? So when I went for industrial training interview, right, in Microsoft, like it was scheduled for about 1.5 hours. And what I did, like the mistake which I did, each and everything was okay. Okay, the mistake went around, like I said, मेरे को Excel नहीं आता because I was into direct taxation only during my articleship, right? And litigations and like केस स्टडीज एंड ऑल, लाइक मेरे को पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट का था. मैंने सीधा मना कर दिया, मुझे एक्सेल नहीं आता. उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि वी आर नॉट गोइंग टू मेक यू लर्न. ठीक है, तो जब कभी भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या कुछ भी, तो प्लीज अपना, मैं बस मुझे एक ही चीज यहाँ पे मैं सबको बोलना चाहूंगी कि कभी भी आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो या आफ्टर प्रोफेशनल, आफ्टर गेटिंग क्वालिफाइड टू, जो टूल्स हैं लाइक एक्सेल, ठीक है, और आपकी बियॉन्ड थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स जो मैं हमारी करिकुलम है उसके अलावा एक्सेल इज द मैंडेटरी वन, आई वुड से. ठीक है, कभी भी इस चीज पे मत बोलना कि एक्सेल नहीं आता, बिकॉज बीइंग अ सीए स्टूडेंट दैट बिकम्स टू वियर्ड टू से दैट. तो उसके बाद HSBC आई गॉट सिलेक्टेड इनटू दैट. बहुत सारी चीजें ऐसी थी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इंटरव्यू में. I would agree with Sai Charan over here. Like they only judge your confidence, right? Even if I told them, I answered them wrong things. I knew it that I'm giving the wrong answers, right? But I knew I'm giving that with the full confidence. That what mattered the most, right? Even in industrial training and even after the qualification interviews too. So whatever answer you are giving, just give it with the confidence. And even in PwC too. And somebody asked this question in chat, like, do we need to make give fake experience? I would say I have given, but you need to make some adjustments, right? You need to give it with the real case scenarios. Like you need to connect it with the real case scenarios beforehand only. अगर आप पहले कोई भी चीज, अगर आप कुछ भी लिख रहे हो तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? इट्स नॉट लाइक आप वहां पे जाके टेस्ट कर रहे हो इंटरव्यूज में. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. सो दैट्स ऑल, लाइक जस्ट वांटेड टू से ओके, ऑलराइट. तो अबाउट माय प्री तो क्वालिफिकेशन आपने काफी एक्सपीरियंस. सही बताया कि यू विल लाइक टू जज कि भाई आप कुछ नहीं आ रहा, तो चलो एक चीज अच्छी थी आपने पहले बता दिया. कुछ ने उसको फेक बनाते बनाते इन डेप्थ चले जाता जब तक इंटरव्यू उसको खत्म ना कर दे, मतलब कहते हैं ना इसकी इज्जत ले ली. तो वो वही सीन हो जाता है, मतलब इतने हाँ हाँ, क्वेश्चन में जा जाके. तो अपना जैसे ना एक करेक्ट. आपने मेंशन किया हुआ FP&A अपान, मतलब आई कांट स्पीक दैट वर्ड, मेरे को बोलना नहीं आ रहा. It is yes. It is not widely known. It is हाँ, ENA plan. क्या Big चीज? Fours are also into it. Yes. It is a tool which is used to streamline or I can say automate the business processes. It is kind of an advanced version of Excel, right? ओके, ऑलराइट. So yes, we do. If we are doing financial planning on the Excel, we are doing it. It's the same thing. We are doing it on the ENA plan, but it is for big businesses. I can say big corporations, and kind of an advanced Excel, we can say, since ओके, it automates everything. Yes. ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग योर टिप्स एंड ट्रिक्स. तो जैसे ही Thank एक you. लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने वो ऑलरेडी कैटर कर दिया है, बट फिर भी मैं एक बार उसको दोबारा हाईलाइट करना चाहूंगा. जैसे आपने मेंशन किया कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स में हुआ डिस्पाइट
वो जो है ना गिव अप कर देते हैं, तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स, ऊपर से ना बाद में इंटरव्यू की रिजेक्शन आनी स्टार्ट हो जाती है कि पहले तो शॉर्ट लिस्ट नहीं होते, Yes. शॉर्ट लिस्ट होते तो फिर बाद में रिजेक्ट होते हैं। तो एक काइंड ऑफ सम शॉर्ट मोटिवेशन अगर आप कुछ देना चाहें तो। मेरे को डेली डीएम्स लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम पे यही चीज से जो आप मुझे पूछ रहे आते हैं कि वी आर गेटिंग रिजेक्टेड, लाइक व्हाट टू डू. I would say people ask me like how to get into finance domain. First of all, I would say even be it finance, taxation, auditing, or be it anything, I would say if you do not have that skill set, like what I observed this time, like post qualification, companies are not judging you on the basis of your, you know, uh, I would say the marks. They are judging you on the skill set too. They are asking you the, like they are judging your mindset, like how do you automate the, how do you process the numbers, how do you analyze, or how do you take the decisions related to business, right? So अभी मतलब मैं मेरे पास डेली मैं मतलब बार बार मैं एक ही चीज रिपीट करती हूँ उनको भी कि अगर नहीं हुआ तो लाइक डोंट लूज होप. इफ आई कैन गेट इनटू इट, everybody can. Even if you get a low paying job, or like even a like finance में, right? If you wanted to, if you want to get into it, if you are getting a small amount of money, just get into it. ओके क्योंकि कुछ टाइम बाद वो लो पेइंग जॉब ही मतलब it leads to a good amount of money. So ओके just don't lose hope, but not now. मतलब ये एक सी रिजल्ट्स है जो मैं इसको लेके चलती हूँ. अगर मेरा आज कल नहीं हुआ था तो मैं सोचती थी कि पता नहीं होगा नहीं होगा, तो लाइक I could manage it, right? So the same thing applies to the job too. ओके ऑल राइट। चलो थैंक्स Yes. फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। तो अभी Thank हम you. Thank you. 5 मिनट्स में Q&A सेशन ओपन करेंगे, तो 5 मिनट्स बता देता हूँ। हाय गाइस, आई एम विवेक बंसल और मैं अपनी करंटली इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ईवाई में कर रहा हूँ। और फर्स्ट ईयर ऑफ माई सीए ट्रेनिंग वाज फ्रॉम एसएस कोठारी फ्रॉम इंटरनल ऑडिट। एंड आफ्टर 1 ईयर एंड 1 मंथ, मतलब सेकंड ईयर में ट्रांसफर लिया था ईवाई में, विच इज़ वेरी रेयर केस। आई डोंट नो हाउ इट हैपन्स एंड इट वॉज ट्रू। तो मैनी पीपल से इट वॉज अ लक, बट यस, एक चीज कहना चाहूंगा कि लग तो था कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी भी ट्रांसफर केस नहीं ले रहे हैं लोग, 1 महीने का भी नहीं लेते हैं। बट आई यूज टू से कि भाई डेली 5-6 मेल करता था मैं, कि कभी मैनेजर पे कर दी, कभी डायरेक्टर पे कर दी, वो लिंक्डइन में पोस्ट आते ना, वी आर हायरिंग करके। तो आई यूज टू से कि भाई एक मेल करने का क्या खर्चा आ रहा है, अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज रिजेक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम ईवाई, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ ईवाई का। 2 टाइम्स फ्रॉम जीटी, और जीटी में तो ऐसा हुआ था मेरा बहुत गंदा हाल ही कर दिया था उसने इंटरव्यू ने। और इफ आई शेयर कि मैं इंटरनल ऑडिट में था, मेरा इंटर में टैक्सेशन वॉज वेरी वीक। अभी यहाँ पे साहिल सर बट उनका आगे कैसे बोलूँ, मेरा टैक्सेशन बहुत गंदा रहा है। 40, मेरा 40 स्कोर ही आया उसमें। तो मेरा इंटरनल ऑडिट में एक्सपीरियंस था, मेरा टैक्सेशन नहीं आता। और मैंने जीटी में अप्लाई भी टैक्सेशन के लिए ही किया था, ओ सॉरी इंटरनल ऑडिट के लिए ही किया था। और मैं इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू के लिए पढ़ के गया। बट इंटरव्यू आस्क में डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन, उसने में से 20-25 लगातार कोर डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन पूछे, अमेंडमेंट्स पूछी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक। मैं उसको 20-25 में से आई थिंक 1 या 2 आंसर कर पाया था, बाकी सब नहीं कर पाया। तो मेरा टैक्सेशन से टच छूट गया था और हो भी नहीं पा रहा था मेरे से। और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दोबारा इंटरव्यू हुआ मेरा वहाँ, सेम पर्सन के साथ हुआ। उन्होंने वही टैक्स के क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए। देन एट द एंड मैंने पूछा कि सर आपको रिजेक्ट करना था तो वैसे ही कर दो ना, वैसे तो मत बेइज्जती करो। और फिर मैंने उनसे पूछा कि सर मैं इंटरनल ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बट वाई आर यू मी फॉर द टैक्सेशन क्वेश्चन। तो ही रिप्लाइड मी, विवेक आप सीए कोर्स कर रहे हो तो क्लाइंट आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इट एक्चुअली हैपन्स। उसके बाद मेरे को एसएसकेएम में ही एक क्लाइंट मिल गया था जिसमें उसने मुझसे काफी कोर क्वेश्चंस पूछे थे, इवन दो आई डोंट नो आंसर्स, कि मतलब मेरे को आंसर नहीं पता। जैसे साई ने और प्रतिभा ने बताया है कि अगर आपको आंसर नहीं पता, बट कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट, कि मेरे को कुछ आंसर्स पता थे, कुछ नहीं पता थे। बट एक क्लाइंट के साथ थोड़ा सा मेरा क्या सीन होता है, मैं हर पीपल के साथ पहले फ्रेंडली होने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि फ्रेंडली होते होते धीरे से कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। फिर मैं उनसे ही इनपुट्स लेके काम करवाने का थोड़ा सा इस तरीके का चलता हूँ। तो आई होप आपको ये सेशन थोड़ा अच्छा लगा होगा। और मैंने थोड़ा सा स्पीकर्स के साथ जैसे बात किया, अच्छे से मैं इंट्रो नहीं ले पाया, बिकॉज मैं थोड़ा सा अभी काफी टाइम से इन चीज़ों से डिस्कनेक्ट हूँ। निकुंज मोटिवेट्स मी नाउ कि विवेक के सेशन लेते हैं, एंड आई डोंट नो उनका एक्सपीरियंस मेरे साथ कैसा रहा होगा, बट मेरे को काफी अच्छा लगा, उन्होंने अपने टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करे।
and lovely every second is worthful. तो नाउ गाइस क्यू एंड सेशन इज ओपन। तो आप अपनी प्लीज कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज आगे पूछिए। और आई वुड लाइक टू प्रेफर कि आप अपना कैमरा ऑन करेंगे जिससे इंटरेक्शन बेहतर रहेगा। जब आप क्वेश्चन पूछें तो 1-to-1 कनेक्शन वो भी बिल्ड रहेगा। तो प्लीज कम एंड लेट्स कनेक्ट। हाय राघव, Hi Vivek. आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज स्पीक अप। May I speak? यस यस, फील फ्री टू स्पीक भाई, कुछ भी बोलो, मतलब सही तरीके से जो हाँ आप हाँ नहीं हाँ। Actually, I am working in GEO tax profile in SCL Technologies. I have more than 3 years post qualification experience. Due to this AI and all those stuff, actually wanted to move out of IT, right, to other sectors. Because of this 90 period notice period, I am being rejected throughout the industry 2 to 3 times. So what actually I should do in order to get to other entities? इसका आंसर कोई भी स्पीकर दे सकता है, मेरे पास तो नहीं है अभी। Raghav, I'll answer you. So 90 period notice is very common across industry. I don't know why it is surprise for some companies. One thing you can do is check with your own company that they allow buyback or not. Most companies do. So if the other They allow, companies, actually they allow, but at the time they say that about industry pretty well, that they already say that no, we will not get let you go till the time we get a more specialized employee. And when at the time of employee coming also, all those KT and all those stuff, so they Mhm, they end don't up allow buyback. in 90-day period only. The 10 to 12 days high buyback can be done, but not more than Mhm. that. That's why this problem is arising. I think their point is also fair. They will also want to stay. Maybe you can negotiate better, or maybe the company that you are going into, you should negotiate with them better. That this is what it is, and if not in 3, 4, 5, ultimately you will get companies who will wait for 90 days, because most big companies wait for 90 days for candidates. And I would not advise you to leave before having a job. So don't do Yeah. that thing just for the notice period. But I think you can keep trying. Some company will be ready to wait, and if existing company is, you're negotiating with them and pursuing, and telling them no, I have to go and whatever, keep eating their head. So maybe they will also agree. And any tips for getting into other sectors? What actually should I do? Actually, I have been applying into LinkedIn a lot of times and company websites also, but sometimes I get response and sometimes I don't. So anything which I should do? Yeah. So LinkedIn, where you're applying on the vacancies that companies post, or do you reach out to people on LinkedIn? No, I apply on the vacancies because and mostly geo tax profile compliance officer to all those vacancies are very limited in nature. So one Hmm. thing is that if I got to another sector or another profile, which I think that after getting more than 3 years of experience would be very difficult to go into. Hmm. So that's why into geo tax profile only if I go. So vacancies are very less in number. Okay, so one thing like I have also seen, if we keep applying on company, links and all, we get very less responses. So what at least I have seen has helped a lot of people is reaching out to maybe, some senior person from companies. So maybe some senior manager, or maybe you can just reach out to the directors or partners in, companies, or just, keep sending mails and messages. Some of them will reply you and help you out. That really works, even though for some time it will not work, ultimately one day it will work. So that is one way you can go, and you can keep checking companies official websites also. There are a lot of companies who will not post on LinkedIn, but they post on their websites. And also on portals like Naukri and all, just keep your profile updated and keep refreshing it every 2 3 days. Maybe you can take a premium version also, so from I took there I took also. I took that I took that previously Okay. and got some opportunities also, but because of this 90 period and all those stuff, because they are saying that mostly maximum they can take only 45 days or 30 days.
notice period person. So it doesn't suit it for me in my case, because in our company, 90 days, they are very stringently following that only. Okay, so matlab that is the only, you have to keep trying, and if suppose you get some opportunity which is not, giving you a exponential growth, maybe giving you same pay, but you really want to switch or change your company or profile, maybe you can consider that option also. Many a times we put the range very high, and because of that also we miss a lot of offers. So maybe you can try, at least get into the interview and then negotiate for the offer, rather than having some bracket on Naukri or all these things. Same for city also. If you can open up more to locations and to the pay package, at least you will keep getting offers. So maybe that you can try. Okay, all right. Any other person, any Nikunj sir, or any, if you have any advice. Raghav, actually, I think this is a same critical situation and industry situation. And as Rashi explained in a depth, the processes. So mainly ये सेम ही चलेगा. तो अगर कुछ हाँ नहीं वो तो same. मतलब 90 वो मीम भी तो आता है कि आपको 90 पीरियड का इशू भी है और आपको आपका खुद का नोटिस पीरियड भी 90 डेज का है. तो आई थिंक राशि हैज कवर्ड परफेक्टली दिस पॉइंट्स. इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी देन फील फ्री टू आस्क. किसी का और कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज गाइस कम अप एंड स्पीक. गुड इवनिंग गाइस. सो एक्चुअली मैंने आईडीपी डोमेन में आर्टिकलशिप किया था, बट मुझे अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन स्टेट ऑडिट डोमेन में करना है. सो कुछ वे आउट है? Yeah, Sai. So let me take this up. So Sai, you can do your job in stat audit as well. And in fact, I'll tell you कि अगर आपने IDT से articleship किए, it would be easy to get job in stat audit, क्योंकि वहाँ पे वैकेंसीज वगैरह ज़्यादा होती है. ठीक है, तो आपको बस वही आपको अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बिल्डअप करना पड़ेगा. यू नीड टू लर्न कि स्टेट ऑडिट वगैरह कैसे होती है. मे बी इफ यू हैव सम कनेक्ट्स, आपके कुछ फ्रेंड्स है जो स्टेट ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा समझिए. आप यू हैव गुड कमांड ओवर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एटसेट्रा, बिकॉज इंटरव्यूअर में मोस्टली वो वही सब चीज़ें पूछेंगे. आपकी अकाउंटिंग एटसेट्रा वगैरह सही होनी चाहिए. बाकी यू कैन एक्सप्लोर स्विचिंग योर प्रोफाइल एज वेल, because you are at a very initial stage of your career. Sir, actually I have seen many posts wherein they have putting the precondition of articleship in state audit as mandatory. In Big Four I have seen this thing, so it's very difficult. And in my case, I have done my first year of articleship in BDO, but in second year, due to my health reason, I have transferred to very small firm where they have only income tax. So would that be difficult for me to get into state audit in Big Four? नहीं सही, आपको मिल जाएगी. इवन दो मतलब अगर लेट से अगर अभी आपको बिग फोर नहीं मिल रही है, आई सजेस्ट ट्राई गो फॉर टॉप 10 फर्म. ओके, आपको मिल जाएगी. मतलब एज आई मेंशन की काफ़ी टीम्स होती है जो डिमांड नहीं करती कि एक्सपीरियंस इन. सो बेसिकली वो क्या कहते हैं, वो प्रेफरेबल कहते हैं. इट्स नॉट ए मैंडेटरी थिंग. You can apply, and if they feel your CV is good, then they can definitely take your interview. आप एक बार अपने CV वगैरह को रिविजिट कर लो कि like how you want to portray for if you want to go for stat audit. Actually sir, in my MCS, what one of my mentors said ki you can fake in your resume that in small firm you have learned about state audit, and you can simultaneously collect inputs from your friends also what they have learned, and वो कुछ पूछेंगे तो फिर वो तभी बोल देना ऐसे. So I recommend कि आप ये सब मत करो, क्योंकि इसका रीजन ये है कि आप जितना करोगे ना, प्रैक्टिकली आपने जो चीज़ें की होगी, अगर थियोरिटिकली अगर आपने मुझसे समझी है, इंटरव्यू और उसकी अगर डिटेल में चला गया तो वो आप बता नहीं पाओगे. करेक्ट. सो मे बी टू सम एक्सटेंट यू कैन से कि बिट एंड पीसेस में काम किया हुआ है. यू कैन टेक योर इनपुट एज आई मेंशन कि आप इंटरव्यूअर में बोल सकते हो लार्जली आपकी प्रोफाइल आईडीटी डोमेन में थी या टेक्स्ट डोमेन में थी, बट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, you have some learning basis your colleagues in stat audit also. Okay,
तो अब वो कर सकते हो, यू कैन से कि आपको ये 4-5 चीजें आपने प्रैक्टिकली देखी हुई है और यू हैव असिस्टेड द टीम। बट अगर So इंटरव्यू to the some डिटेल में चला extent, गया we तो can say. देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर Uh, सॉरी। Hmm. So Sai, only to the some extent we can take, not fully. या Sai, I would like Okay. to add, I would like to add, Sai, कि जैसे अभी साई ने सही बोला है कि अपने रिज्यूमे में फेक मत करो, क्योंकि अगर आप कोई भी टॉप 10 कहीं भी आप बड़ी फर्म में जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कोई इंटरव्यू फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस लेके बैठा है, ही हैज अ लॉट ऑफ ईयर्स एक्सपीरियंस। तो आप जहाँ भी उसको फेक करोगे उसको पहले इंस्टेंट में समझ आ जाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं और आपने कितना उसमें काम किया है। एंड इवन ऑडिट हो या टैक्सेशन हो, वट एवर दी प्रोफाइल, जब आप उसमें कुछ भी आप पहली बात को रखोगे ना, और उसके बाद आप उस जब उसकी जैसे आप कोई भी एक्सपीरियंस आता है आप उसको बताते हो कि मैंने ये वाउचर चेक किया, उसके बाद मेरी ये ऑब्जर्वेशन थी, उसके बाद से उन्हें पता लगना स्टार्ट हो जाता है कि इसने सही में काम किया है या ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि एक चीज का ना मल्टीपल चीजें चेक करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट, जैसे मैं तो ऑडिट में ऑडिट का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हम एक चीज को चेक करते हैं पहली बार ही हमने उसको ओके कर दिया, बट इन लेटर पार्ट क्या होता है हमें, मतलब अभी जैसे मेरे साथ क्या हुआ है, मैं रिइंबर्समेंट को ओके करते आया था, बट इस बार मेरे को कुछ पॉइंट नहीं मिले तो हमने रिइंबर्समेंट को अच्छे तरीके से खोल के देखा, उसका मतलब एक टैक्सेशन का टीडीएस का बड़ा बढ़िया पॉइंट लिंक हो गया है, जिसका एक बिगर इम्पैक्ट आ रहा है। तो ऐसे ही होता है कि जब आप ऑडिट प्रोफाइल में आ रहे हैं ना, ऑडिट में आपको वो डीप डाउन करते 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 बिल्कुल एंड तक ले जाएगा। एक बार मैंने खुद ट्राई करके देखा था कि मतलब ऐसा कुछ कर दूं, फिर उसने केस स्टडी में इतना डीप डाउन ले गया था पता नहीं चला था रिलेटेड पार्टी लॉ का सेक्शन कहाँ से खुल गए थे पूरे। करेक्ट। Okay. तो अगर आप हल्का सा एंड फेक फेक करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इतना प्लानिंग करना कि आप लास्ट तक जाओ बिल्कुल उसकी, कि भाई चाहे तो बिल्कुल पता ना चले उसको, कि आपको उसका पूरा इन एंड आउट पता चलना चाहिए कि अगर उसमें कोई फ्रॉड हो जाए तो फ्रॉड कैसे हो रहा है, उसमें कैसे कंपनीज एक्ट का सेक्शन लिंक हो रहा है, आप ऑडिट रिपोर्ट में कैसे दिखाओगे, और ये पूरा आपका इन डेप्थ एक्सपीरियंस हो जाएगा। और आई वुड लाइक टू से आप होनेस्ट रहिए, अगर आप होनेस्ट रहेंगे तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी कम रहेगी ड्यूरिंग द इनिशियल डेज, वरना उनको लगेगा कि आपको काम आता है और आपने उनकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करी तो वो थोड़ा सा सुनने वाला काम हो जाएगा। एंड Okay. एडिंग पर साई, आप अगर लेट से काफी बार ये भी होता है कि इंटरव्यूअर अगर आप बोलते हो कि आईडीटी का एक्सपीरियंस है तो मे बी वो कुछ आईडीटी के बेसिक क्वेश्चन भी आपसे पूछ ले, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि आपका एक्सपीरियंस ही स्टैटोइड का, तो वो स्टैटोइड के ही पूछेगा क्योंकि उसकी तो डोमेन ही वही है। तो एक एंगल ये भी होता है, वो मे बी आपका, बिकॉज ही ऑल्सो नो कि आपको स्टैटोइड नहीं पता, ही मे नॉट आस्क यू दैट मच टेक्निकल क्वेश्चन ऑफ स्टैटोइड, वो आपकी डोमेन में जो आपने काम किया हो उसी कुछ बेसिक चीजें पूछ ले, ये भी हो सकता है। ओके गाइज, आई थिंक ये सेशन Okay. एंड होने वाला है, इसका टाइम ड्यूरेशन भी खत्म होने वाला है, तो रैप अप करते हैं। और आपको कुछ भी क्वेश्चन होगा प्लीज पुट कर देना गाइज, वी विल लाइक टू, मैं उनकी क्वेरीज को आगे फर्दर से कर दूंगा। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल स्पीकर्स एंड सॉरी कि मैंने कुछ इंट्रोडक्ट में कुछ गलत हो गया है, काफ़ी टाइम बाद मैंने सेशन लिया है, और इवन दो मेरे को काफ़ी अच्छी इंग्लिश भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से सॉरी फॉर डैट एंड थैंक्स, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया। और टू बी होनेस्ट मेरे को नहीं पता चला ये टाइम कब 7 बजे स्टार्ट हुआ, अब 8:15 हो रहे हैं, तो कब 8:15 तक पहुंच गए, एवरी सेकंड वॉज वर्थफुल।